Assalamu alaikum students. Myself, Dr. Shafiq, your tutor of International Logistics Management subject. The topic which we are discussing today in the International Logistics Management is supply chain integration. Supply chain integration को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को ओवरव्यू लिया, उसके वेरियस कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हुए करंट स्कोप और ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव में हमने उसको डिस्कस किया। आज का जो टॉपिक है दैट इज सप्लाई चेन इंटीग्रेशन एंड इट्स रोल with respect to international logistics management. जब हम सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की बात करते हैं, so integration mean there is some collaboration, coordination between stakeholders and partners. Those partners would be your downstream partner or would be upstream partner. And this integration would be or could be a vertical integration or a horizontal integration. डाउनस्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन इंटीग्रेशन मीन द इंटीग्रेशन with your supplier sides coordination, data sharing and all supportive activities regarding better management of the supply is called the downstream supply chain integration. When we talk about the upstream integration, it means the integration तो अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन के अंदर from your manufacturing or processing of the goods, once you deliver your products, का वो goods की हो या services की हो, to your customer, to the end user, तो उसके दरमियान जो stakeholders आते हैं, वो आपकी transportation facility के हैं, वो आपके distributors हैं, वो आपके customers हैं, वो आपके marketers हैं. These all would call the upward integrations. So supply chain integrations, then downstream integrations or upward integrations, both can be for the betterment and for the best value for the money in the supply chain management to create the efficiency and the effectiveness to overall supply chain systems. इसको हम supply chain integration कहते हैं. और अगर आप इसको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सो देयर वुड बी अ वेरियस you know the ways
are various parts which may have to integrate. For example, आपका अगर कोई supplier किसी दूसरे origin से belong करता है, एशिया से बिलोंग करता है, यूरोप से बिलोंग करता है, एंड यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग इन द एशिया, इन द पाकिस्तान, तो उस इंटीग्रेशन को हम डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशंस के कहते हैं. और उस इंटीग्रेशन के लिए इफ यू हैड सम पार्टनरशिप, सम स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद दोस सप्लायर्स, तो उसको हम सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का नाम देंगे. और आप अगर अपने प्रोडक्ट्स की सेल के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, यू हैव क्रिएटेड सम डिस्ट्रीब्यूटर समवेयर इन यूरोप, समवेयर इन मिडल ईस्ट, तो वो जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, दोज वुड बी योर upward integration in the perspective of international logistics management. So इस इंटीग्रेशन के अंदर, इस तमाम इंटीग्रेशन supply chain processes के अंदर, one of the thing is which is much important and we must should adhere, that is to understand the old and the new paradigms in supply chain strategies. इंटीग्रेशन क्योंकि स्ट्रेटजीज का नाम है, खा वो आप डाउनस्ट्रीम स्ट्रेटजी बना रहे हैं या अपस्ट्रीम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो उन स्ट्रेटजीज को अगर हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, देयर आर two major categories. One is the old paradigms, the old types of the strategies, and the new types of the strategies are the new paradigms of the supply chain strategies. तो इन इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज के अंदर अगर ओल्ड पैराडाइम्स की हम बात करें, द पुश स्ट्रेटेजी इज वन ऑफ द मेजर वन. अब पुश स्ट्रेटेजी क्या है कि जिसमें आप अपने प्रोडक्शंस के डिसीजन जो हैं वो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, और आपके जो ऑर्डरिंग के डिसीजंस हैं वो भी इन्वेंट्री की और फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. और जो प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ स्ट्रेटजीज के, वो भी उसी तरह से मोर कम्प्लेक्स होते हैं, but there would be some advantages and disadvantages of this strategy. So first of all, हमें ये understand करना है कि पुश स्ट्रेटेजी है क्या चीज़. अगर आप पुराने वक्तों की बात करें, इवन बिफोर 90s की या 90s की बात करें, बिफोर 20th centuries की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन के अंदर द मेजर थिंग वाज टू प्रोड्यूस द गुड्स as much as you can, और उसके बाद आप जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर देते थे once, and then there was a strategy कि you have to push, आपको जो ऑर्डर मिल रहे हैं उन ऑर्डर्स के फिर आप जो चीज़ें आपके पास बनी पड़ी हैं फिर उनको आप बेचते जाएं. तो ये एट लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो थी, इसके जो डिसीजंस थे वो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के बेस के ऊपर थे कि जी 6 महीने की फोरकास्ट, मिनिमम 3 मंथ्स की फोरकास्ट, 1 ईयर की फोरकास्ट, और उस फोरकास्ट की बेस के ऊपर आप अपने प्रोडक्शंस कर रहे होते थे, एंड यू आर स्टोरिंग द इन्वेंट्री और द फिनिश गुड्स एट अ लार्ज स्केल, जिसकी आपको बहुत बड़ी कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी इन्वेंट्री हैंडलिंग की, और रॉ मटेरियल की सूरत में, वो फिनिश्ड गुड्स और
फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की सूरत में, और जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होते थे आप उन प्रोडक्ट्स को फौरन डिलीवर कर देते थे टू द कस्टमर्स। तो इस स्ट्रेटेजी को, इस पैराडाइम को हम पुश स्ट्रेटेजी कहते हैं। या आपने पहले से एडवांस में चीज़ें बना के रख दी हैं और आपको ऑर्डर मिल रहे हैं और आप उन चीज़ों को बेच रहे हैं, ठीक है, सेल आउट कर रहे हैं। सो दिस स्ट्रेटेजी कॉल्ड द पुश स्ट्रेटेजी, ठीक है। ओके, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं पुश स्ट्रेटेजी के, वो एक तो ये है कि आपकी जो डिमांड पैटर्न्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको ये बेहतर तरीके से मीट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कि आपके डिमांड पैटर्न में अचानक से कोई इंक्रीज आ गया है और पुश स्ट्रेटेजी के अंदर आपने लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के अंदर सोचा था कि 10,000 यूनिट चाहिए होंगे हमें मई के अंदर, लेकिन मई में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि अचानक से उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है और वो डिमांड 20,000 पे चली गई है, तो यू हैव द इन्वेंट्री ऑफ ओनली 10,000 यूनिट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप उस वेरिएशंस को, उस पैटर्न को जो चेंज हुआ है उसको मीट करने के काबिल नहीं होते, उसको आप इनेबल होते हैं उस डिमांड को फुलफिल करने के। और यहाँ पे ऑब्सोलेसेंस के, ऑब्सोलीट होने के, इन्वेंट्री के खराब होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप बल्क के अंदर वंस यू हैव यू नो प्रोड्यूस्ड एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सेल दोज थिंग्स, तो वो जो चीज़ें हैं आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऑब्सोलीट होने का चांस या रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो खराब हो सकती हैं। एंड द सेकंड effect or the second problem in the push strategy is that create the bullwhip effect. अब बुलवीप इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि बुलवीप कंसेप्ट है क्या चीज, किस चीज को हम बुलवीप कहते हैं। इसके ऊपर हमारे पास एक गेम भी है जिसको हम, अगर फिजिकल क्लास होती तो जरूर यहाँ पे हम प्ले करते, उस गेम को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं आपको कि बुलवीप कैसे क्रिएट होता है, कैसे ये इफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई चेन परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बुलवीप को हम इलेबोरेट करते हैं जी, बुलवीप कंसेप्ट है क्या चीज। आपने पुराने जमाने में राहट को चलता देखा होगा, गो के अभी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आपने कहीं यूट्यूब पे या कहीं क्या कहते हैं अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि राहट चलते थे। राहट का मतलब था कि वो बैल के जरिए आप पानी निकालते थे, कुएं से पानी निकालना, उसको हम कहते थे राहट। अब उसमें होता क्या था, आप अगर यूट्यूब करके देखें, उसमें होता ये है कि वो एक चेन बनी होती है डोल्स की, उसके साथ मुख्तलिफ वो डोल्स लगे होते हैं, और वो जैसे नीचे पानी में जाते हैं वो भर जाते हैं, वो ऊपर आते हैं, वो जैसे कल्टी होते हैं तो वो पानी गिर जाता है, और वहाँ से वो एक वहाँ आपने डक लगाया होता है और उस डक के थ्रू वो पानी ऊपर सरफेस के ऊपर बहना शुरू हो जाता है। ठीक, तो जैसे जैसे बैल चक्कर ज्यादा खाता है उतनी वो चेन ज्यादा चलती है, ज्यादा डोल्स फिल होते हैं और ज्यादा वहाँ पे एम्प्टी होते हैं, और पानी ज्यादा वहाँ पे गिरता है सरफेस के ऊपर, और पानी की मिकदार भी ज्यादा होती है। अब वहाँ पे होता यूं है कि वो क्योंकि डोल्स भर के आते हैं, और जैसे ही डोल वहाँ पे आके गिरता है उस डक के ऊपर, तो एकदम से पानी आता है, डोल खाली होता है, रुक जाता है, फिर दूसरा डोल गिरता है, पानी बढ़ता है, फिर खत्म हो जाता है, तीसरा गिरता है, फिर पानी का एक क्या कहते हैं फ्लो बनता है। तो वो इस तरह से कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, अब
इसको बेसिकली उस राहत के कंसेप्ट के साथ जोड़ा गया है। इसको अगर हम अपनी सप्लाई चेन के साथ इसको अप्लाई करें, इसको डेमोस्ट्रेट करें कि सप्लाई चेन के अंदर क्या होता है, कि सप्लाई चेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन हमने बात की। तमाम तर फ्लो को हम सप्लाई चेन कहते हैं, खा वो इंफॉर्मेशन का हो या सर्विसेज का हो या प्रोडक्ट्स का हो या ऑपरेशनल एक्टिविटीज का हो। तो उसमें होता यह है जी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आप एक डिमांड फोरकास्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से, माजरत, कि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन से आप अपनी डिमांड फोरकास्ट करते हैं और उसके बाद आप रिवर्स जाते हैं अप टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और वहाँ से आप अपना मटेरियल खरीदते हैं और उस चीज़ को, प्रोडक्ट को प्रोसेस करके एंड कंज्यूमर तक बेचते हैं। अब बुलविप इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब आप वो अपनी डिमांड फोरकास्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हैं? अगर हम यहाँ पे कोई क्या कह सकते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स की एग्जांपल ले लें, ठीक, एफएमसीजीज की अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे, तो सबसे पहले आप क्या जाते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर वाले के पास जाते हैं, उससे आप पूछते हैं जी इस प्रोडक्ट की क्या आपके पास डिमांड है, आप हमें ऑर्डर लिखवा दें। आप उससे ऑर्डर लेते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास हेड एंड शोल्डर लास्ट मंथ में आपने 30, मुझे 30 आपने डिलीवर किए थे और वो 20th को ख़त्म हो गए। इसका मतलब है इस दफ़ा मुझे ऑलमोस्ट 40 चाहिए। वो कहता है जी 40 हेड एंड शोल्डर लिख लें जी, ये मेरी डिमांड है। इसी तरह से वो 2, 3, 4 जितने भी स्टोर्स होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, सबके पास आपका ऑर्डर बुकर जाके उससे वो ऑर्डर्स ले लेता है। अब वो जो ऑर्डर आप लिखवाते हैं या वो जो स्टोर वाला लिखवाता है, वो कहता है जी 20 अगर पिछले महीने में कंज्यूम हुए हैं तो इस महीने में, अगले महीने में हो सकता है ये 30 हो। अच्छा, मैं ऑन द सेफ साइड 35 का ऑर्डर लिखवा देता हूँ, वो 35 लिखवा देता है। वो ऑर्डर बुकर को 35 लिखवाता है। ऑर्डर बुकर क्या करता है जी, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है उसके मैनेजर का कि आप अपनी सेल इंक्रीज करें जी, कंपटीशन है, आपकी चीज़ें क्यों नहीं बिक रही। वो कहता है अच्छा इसने 35 लिखाया, ठीक है, इस चौधरी साहब को हम 35 नहीं 40 डिलीवर करेंगे। दूसरे को जनाब मियाँ साहब को हम उसने 25 का लिखाया, उसको हम 28 डिलीवर करेंगे, 28 लिख देते हैं उसके ऑर्डर में। वो ऑर्डर आप बनाकर आप अपने मैनेजर को भेजते हैं। जो मैनेजर है वो डिस्ट्रीब्यूटर से कहता है जनाब, वो उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो जब डाटा शेयर कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको कहता है अच्छा पिछली दफ़ा हमने ये हेड एंड शोल्डर जो है वे 1000 यूनिट मंगवाए थे, तो इसका मतलब है इस दफ़ा अगर हमारी डिमांड 1100 क्रिएट हुई है तो लेट बी ऑन द सेफ साइड, तो वो उसका ऑर्डर कर देता है 1150 का, तो 50 वो इनहेंस कर देता है। वो जैसे ही जाता है पीएनजी वालों के मैनेजर के पास, मार्केटिंग मैनेजर के पास या सेल्स मैनेजर के पास, सॉरी, तो वो सेल्स मैनेजर देखता है कि अच्छा इस डिस्ट्रीब्यूटर ने इस दफ़ा 1150 का ऑर्डर दिया है, नहीं मुझे तो ईयर क्लोजिंग आ रहा है या मंथ क्लोजिंग आ रही है, अपनी सेल्स बढ़ा के अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, मैंने तो इंसेंटिव लेने हैं, मैंने तो प्रमोशन लेनी है। वो क्या करता है जी, वो कहते हैं नहीं इस डिस्ट्रीब्यूटर को हम 1150 का इसने ऑर्डर किया, हम इसको 1250 डिलीवर करते हैं या 1200 डिलीवर करते हैं। वो उस डिस्ट्रीब्यूटर को 1200 का ऑर्डर लिखवा देता है आगे अपने वेयर हाउस वालों को, पीएनजी के वेयर हाउस को लिखवा दिया। अब जब पीएनजी के वेयर हाउस को 1200 का ऑर्डर रिसीव होता है, वो क्या करते हैं, वो आगे अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो कहते हैं जी 1210 का ऑर्डर है,
10 ऑन द सेफ साइड, ताकि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक जो है वो एटलीस्ट ऑन द सेफ साइड हो, और उसके लिए हमें कुछ इन फ्यूचर अगर डिमांड वेरिएशन आती है तो मसला ना हो। तो वो भी अपने आप को ऑन सेफ साइड रखते हुए 10 मजीद इनहेंस करके उनको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब क्या होता है जी, मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास जब ऑर्डर पहुंचता है, ही लुक्स एट दैट, शी लुक्स एट दैट, वो कहते हैं जी हैं ये तो 1250 यूनिट की डिमांड आ गई है, इतनी तो हमारी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम इसको प्रोड्यूस कर सकें इस महीने के अंदर। वो क्या करते हैं जी, वो एक डिमांड जनरेट करते हैं एक्सटेंशन की या ओवर प्रोडक्टिविटी की। वो कहते हैं जी हम इसके ऊपर, हमें इतनी लेबर और चाहिए, इतना हमें जो ना रॉ मटेरियल और चाहिए, और इस मशीन को, या एक मशीन हमें और चाहिए, या इस मशीन की प्रोडक्टिविटी को हमने 2 शिफ्ट्स के अंदर ऑपरेट करना है। अगर पहले हम एक शिफ्ट के अंदर चला रहे हैं तो हम उसको 100% कैपेसिटी के ऊपर लेकर जाएंगे। तो वो उस तरह से प्लान करते हुए जनाब रिसोर्सेज को अवेल करते हैं, न्यू रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, पहले रिसोर्सेज को क्या कहते हैं 100% ऑक्यूपेंसी पे लेकर जाते हैं, और उस महीने के अंदर अपने जो उनका सप्लायर होता है रॉ मटेरियल का, उसको भी वो एक्सेस इन्वेंट्री का ऑर्डर देते हैं। और वो क्या होता है जनाब, उस महीने के अंदर आपने वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके वो डिमांड फुलफिल कर दी। अब जब वो वहां से वो चलती हुई वापस उस स्टोर वाले के पास जब पहुंचती हैं वो 40-40 आइटम्स, अब रियल कस्टमर तो वही है, आप, मैं और उस इलाके के लोग। वो अगर पिछले महीने में 20 खरीदे थे या 30 खरीदे थे, तो इस महीने में 32-33 हो जाएंगे, इससे ज्यादा मुश्किल ही है। तो वहां पे वो उतने ही खरीदता है। अब वहां पे उस स्टोर वाले के पास स्टॉक अगले महीने बच जाता है। अगले महीने जब आपका ऑर्डर बुकर जाता है उसके पास, तो वो कहता है नहीं यार 10 यूनिट पहले के भी बचे हुए हैं, 20 यूनिट पहले के भी बचे हुए हैं, इस महीने आप ऐसे करो जस्ट 5 यूनिट लिख दो मेरे। इसी तरह से वो तमाम स्टोर्स वाले उसको रिड्यूस करके लिखवा देते हैं, और पिछले महीने जो आपकी कैपेसिटी 100 या 110% पे थी, वो इस दफ़ा आपकी 30 या 40% पे आ जाती है, और आपने वो जो एडिशनल रिसोर्सेज लगा के अपनी कैपेसिटी इनहेंस की होती है उसके भी आपको चार्जेस पड़ जाते हैं, और ये इफेक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल सप्लाई चेन के ऊपर, और इसकी कॉस्ट आपकी जो है वो इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब ये कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ऑफ कोर्स आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और पूरी सप्लाई चेन के ऊपर ये इफेक्ट करेगी, अप टू द एंड कंज्यूमर इफेक्ट करेगी। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो आप उसकी प्राइस बढ़ाएंगे, आप उसकी प्राइस बढ़ाएंगे तो आपका कस्टमर उसके ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और कस्टमर को ज़्यादा पे करने पड़ेंगे तो देयर वुड बी अ कम्पिटिटिव मार्केट, कस्टमर आपका वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी प्रोडक्ट पर जा सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ द प्रेशर्स। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं बुल वीप इफेक्ट। ठीक हो गया जी। इस बुल वीप इफेक्ट के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई, फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ मॉडल्स क्रिएट हुए कि इस बुल वीप इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, एंड देयर इज ओनली एंड वन सॉल्यूशन टू क्रिएट एन इंटीग्रेशन एंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपके पास रियल टाइम जब डाटा होगा, कस्टमर से लेके आपके रॉ मटेरियल सप्लायर तक का जब डाटा होगा, तो आपकी वो जो फोरकास्टिंग है वो मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाएगी। आपके पास अगर रियल सेल डाटा होगा मार्केट का लाइफ टाइम, जी आज इतनी प्रोडक्ट सेल हो गई हैं, जैसे ही प्रोडक्ट वो सेल होती है तो आपका सिस्टम उससे अगर इंटीग्रेटेड है, आपके स्टॉक आपके पास वो इंफॉर्मेशन फौरन शो हो जाती है। तो आप के पास आपकी रियल टाइम इन्वेंट्री आ रही होगी कि हाँ जी इतनी इन्वेंट्री हमारी सेल आउट हो गई है, इतनी इन्वेंट्री हमारी डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी है, इतनी स्टोर वाले के पास पड़ी है, इतनी हमारे अपने वेयर हाउस में पड़ी है, और उसके बाद इतना आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, एंड देन यू मे हैव टू रीऑर्डर फॉर फर्दर रॉ मटेरियल and may have to mobilize your resources accordingly to produce that particular product.
तो इस तरह से इस इंटीग्रेशन से आप अपने बुल वीप इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि पुश स्ट्रेटजीज के अंदर पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं और उसके बाद आपको जैसे ऑर्डर वसूल हो रहे होते हैं और आप उनको पुश कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे बुल वीप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है पुश स्ट्रेटेजी के अंदर। आपके पास यूजुअली एक्सेसिव इन्वेंट्री रहती है, जिसको हैंडलिंग की कास्ट पड़ती है, स्टोरेज की कास्ट पड़ती है आपको, और एक्सेसिव प्रोडक्शन वेरिएबिलिटी होती है, और पुअर सर्विस लेवल भी वहाँ पे बढ़ता है, सर्विस लेवल भी आपका पुअर हो जाता है। तो ये हैं ओल्ड पैराडाइम्स टुवर्ड्स और थ्रू पुश स्ट्रेटेजीज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक हो गया? उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। इस पुश स्ट्रेटेजी के बाद द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज पुल स्ट्रेटेजी। अब पुल स्ट्रेटेजी क्या चीज है? पुल स्ट्रेटेजीज के अंदर हम ये करते हैं जी, आप जस्ट इन टाइम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कि आपको जस्ट ऑर्डर रिसीव होते हैं, रियल टाइम डाटा आपके पास आ रहा होता है, आपको पता है जी ये ऑर्डर आ रहा है और इस ऑर्डर को आपने मीट करना है। आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को ऑर्डर देते हैं और उस तरह से उस ऑर्डर को आप फ़ौरन तैयार कर लेते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है आप उसको पुल कर देते हैं। आपके पास यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल मिनिमम होता है, जस्ट आपने सेफ्टी स्टॉक स्टोर किया होता है, ज़्यादा स्टॉक नहीं स्टोर किया होता। इससे आपका क्या होता है कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज हो जाती है, आपकी इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है। जब आपकी ये सारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती हैं, इसका मतलब है आप ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो पुल स्ट्रेटेजी इज़ इन नाउ, और इसको हम न्यू पैराडाइम कहते हैं। अगर यहाँ पे आप जस्ट इन टाइम की बात करें, लीन और ली एजिलिटी की बात करें, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पुल स्ट्रेटेजी। पुल स्ट्रेटेजी के अंदर इंटीग्रेशन प्ले अ मोर एंड मच इम्पोर्टेंट रोल। जितना आप वेल इंटीग्रेटेड डाटा शेयरिंग होगी, उतनी ज़्यादा आपकी पुल स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रहेगी। और इसके अंदर भी कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई अनसर्टेनिटी हो गई है, कोई डिमांड के अंदर फ्लैक्चुएशन आ गई है, अचानक से आपको उसको फुलफिल करना पड़े, तो उस डिमांड को आपको फुलफिल करने के लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आपने चीज़ें पहले बनाकर नहीं रखी हुई, आपको अचानक से डिमांड इंक्रीज हुई, तो अचानक से आपको अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हुए एक्सेसिव प्रोडक्टिविटी देनी है। तो यहाँ पे ये रिस्क है कि आपकी डिमांड्स की अनसर्टेनिटी को आप मीट ना कर पाएं। There would be a less flexibility to meet the uncertain demands, but it is possible if you have a good and managed integrated data and systems। तो वहाँ से आप आपको पहले ही प्रेडिक्ट हो जाएगा, पहले ही आप फोरकास्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास डिमांड फोरकास्ट इंटीग्रेटेड वेल मैनेज सिस्टम है, तो आप उस फ्लैक्चुएशन को, उस अनसर्टेनिटी को पहले फोरकास्ट कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हुए और उस ऑर्डर को आप पुल कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं। पुल स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स जो होते हैं, यहाँ पे आपका लीड टाइम जो है वो कम हो जाता है और बेटर एंटिसिपेशन होती है। यहाँ पे आपके इन्वेंट्री लेवल कम हो जाता है, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स बहुत लेवल के ऊपर इन्वेंट्री हैंडलिंग का कम होगी। इन्वेंट्री लेवल कम होने से आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें बनाकर रखेंगे, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होकर पड़ा रहेगा। तो आप इससे आप अपनी कैपिटल को सेव करते हुए पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, फर्दर एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं, कोई और अल्टरनेट बिजनेस देख सकते हैं। और यहाँ पे डिक्रीज सिस्टम वेरिएबिलिटी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती हैं और बेटर रिस्पांस आपके पास मिल जाता है टू चेंजिंग द मार्केट। मार्केट के अंदर कोई अगर चेंजेस आ रही हैं और आपके पास वेल इंटीग्रेटेड पुल स्ट्रेटेजीज अवेलेबल हैं, तो उन रिस्पॉन्सेस को आप चेंजेस को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन
पुल स्ट्रेटेजी इज हार्डर टू लिवरेज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को लिवरेज करने के लिए बहुत सख्त और बड़ी मुश्किल स्ट्रेटेजी है कि आपने वहाँ पे अपना इकोनॉमी ऑफ स्केल्स भी मेंटेन रखना है और वहाँ पे आपने जस्ट इन टाइम को फोकस करते हुए अपनी सप्लाई को भी मेंटेन रखना है. देयर वुड बी अ ह्यूज रिस्क बट देयर इज अ ह्यूज रिटर्न एज वेल एंड डज नॉट वर्क इन द ऑल केसेस. अगर आपके पास कोई सडन डिमांड क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ सम सर्टन इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई नेचुरल डिजास्टर आया है, कोई आपके पास मैन मेड डिजास्टर आ गया है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोविड-19 की वजह से अचानक मास्क की डिमांड में इंक्रीज हो गई, अचानक से वेंटिलेटर्स की डिमांड में इंक्रीज हो गई, अचानक से आपके पास एस्प्रिन डेस्प्रिन की जो है ना या पेंडोल की डिमांड इंक्रीज हो गई. तो इस तरह से जब ये अचानक किसी वबा की वजह से, किसी डिज़ास्टर की वजह से कोई चीज़ इन्हेंस होती है, डिमांड इन्हेंस इंक्रीज होती है, तो उस सूरत में पुल स्ट्रेटेजी आपकी मोर ऑफन उस तरह से कामयाब नहीं रहती और इसकी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल नहीं होता कि वो उस डिमांड को, अनसर्टन डिमांड को क्विकली फुलफिल कर पाए. तो इसके लिए आपको अपने उस सिस्टम के अंदर आप जितने इंटीग्रेटेड हैं उस तरह से आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के सेकंड प्लान्स भी मौजूद होने चाहिए, ताकि इस तरह के अगर कोई हैजर्ड्स आते हैं, कोई हैजर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई अगर डिजास्टर्स आते हैं उन हैजर्ड्स की वजह से, तो यू हैव टू मीट दोज डिमांड्स, अनसर्टेन डिमांड्स मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली. तो ये आज हमने डिस्कस किया जी older paradigms and newer paradigms, pull strategy and the push strategies, और इन दोनों के हमने concepts, और then we also discuss the bullwhip effect. इन तीन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है under the integration of logistics and supply chain management, और इसको हमने रिलेट किया इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के साथ. और फर्दर जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कि इधर वी शुड बी अ पुल और वी शुड बी अ पुश और वी शुड बी अ बोथ पुल एंड पुश. अगर हमें बोथ पुल एंड पुश पे होना है तो एट व्हाट लेवल वी शुड रिमेन एट द पुल लेवल एंड एट व्हाट लेवल वी शुड रिमेन टू द पुश लेवल. इसको हमने फर्दर डिस्कस करना है और इसके ऊपर आगे हमारा क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास का ये टॉपिक होगा. अप टू हियर you have to watch this whole lecture and please note down the questions, and you may ask me into the coming class, and you may text me or you may send me a voice note to the WhatsApp, and we may discuss before starting it into the next class this topic. So thank you so much for today class, and stay happy, stay blessed, stay safe at your homes, and Allah Hafiz.